Saloni, before we start, I'll give a quick background to everyone. So thank you everyone for joining us on this webinar. Though we all understand that the GSTR one is been pretty old in in taxation. Most of us knows about GSTR one filing, but the reason being we have kept this webinar to make everyone uh, help and aware about the challenges which are being faced by by the chartered accountants and by the fraternity while filing the GSTR one return, and how can we address those challenges, those pain points while using application. So Saloni Jain with us, she's a product evangelist in KDK Softwares, and she's going to help you with the GSTR one filing while also which are being faced while filing the GSTR one return. So Saloni, over to you, and you can take up the session now. Thank you. Accountants and tax consultants and corporates. My name is Saloni Jain and I will be your host for the session. In today's webinar, we are briefly going to talk about what is Express GST, what are the pain points that a CA or a corporate faces at the time of preparing their R1 data, how Express GST is trying to help and solve these pain points, and getting a better control and visibility of your GSTIN data. And last but definitely not the least, we are going to have a quick demonstration of Express GST's GSTR1. All right, then, so let's get started. So the question arises, what is Express GST? Express GST is a cloud-based solution designed especially for CA firms and corporates that enables you to get a better control and visibility on your return and reconciliation data. It helps you file your GSTR1 return 2x times faster, and it reconciles your 2A data with books purchase data in no time. So in the next few minutes, we are through of some of the key pain points that a CA or a corporate faces in preparing their R1 data and how Express GST has tried to solve them. One of the key pain points that we've often heard from multiple users is कि रिटर्न का डेटा एंटर करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले ऑफलाइन यूटिलिटी में अपने डेटा को इंपोर्ट करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ जेसन ऑफ इट, जेसन फाइल ऑफ इट. जब आप वो जेसन फाइल जनरेट कर लेते हैं तो आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं और वहां पे जाके आप उसे अपलोड करते हैं. जब वो एक बार ही अपलोड हो जाती है तो उसके बाद अपलोड होने के बाद स्टेटस आने में भी हमें कुछ टाइम लगता है, जिस बीच में हमें ये पता नहीं होता कि वो अपलोड हुई है या नहीं हुई है. अगर वो एक बार ही अपलोड हो भी गई और लेट से उसमें एक एरर आ गई तो एरर फाइल जनरेट होने में ही हमें काफी टाइम लग जाता है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, फिर अब आपको अगर उसमें कुछ एरर मिल गई तो अब उसकी फिक्सिंग करना और फिर वापस वही पूरा टाइम कंज्यूम हो. विद एक्सप्रेस जीएसटी वी हैव अप्लाइड मल्टीपल ऑटोमेशन स्टेप्स एंड बल्क इंपोर्ट्स अक्रॉस द सॉफ्टवेयर सो दैट यू विल बी एबल टू इंपोर्ट योर रिटर्न डेटा इन नो टाइम. क्योंकि हम गवर्नमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की R1 एक्सेल टेम्पलेट सपोर्ट करते हैं, you do not have to worry about copying your data into from another format into our format and then importing. ये सारा काम हम जो आपका टेम्पलेट है उसी पे ही कर लेंगे. With 100+ smart validations applied across the software, there are minimal chances of you getting an error at the time of uploading your data on portal. Another frequently heard pain point is that there is often a struggle to get a crisp and consolidated summary of your R1 data. हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम डेटा को इंपोर्ट तो कर लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, बट इंपोर्ट करने के बाद एक तो हमें उसकी एक मीनिंगफुल समरी नहीं मिल पाती, दूसरा हमें ये पता नहीं चल पाता कि क्या डेटा, कितना डेटा इंपोर्ट हुआ और उसमें क्या इश्यूज थे. With Express GST, we have curated a meaningful summary of your R1 data so as to give you a better visibility of your company's sales data for a particular tax period. The next pain point in the list is that it is very difficult to search for a desired invoice, especially जब हमारे invoices 500 से ऊपर होती हैं. With Express GST, हमारी सारी tables की हर field Excel like searching, sorting और filtering perform करती है ताकि आपका invoice ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए और आप उस इनवॉइस को ढूंढ के उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से लेना है. द लास्ट पेन पॉइंट इन दिस लिस्ट, फॉर दैट वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस अबाउट अ सिंपल एग्जांपल जो हम सब शायद उससे रिलेट कर पाते हैं. तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप एक महीने की R1 फाइल कर रहे हैं और आपने अपना सारा डेटा जो है
वो एक एक्सेल में बनाया और एक सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लिया। जो डेटा आपने इंपोर्ट किया उसमें क्या एरर आई? वेल, इनफैक्ट ये भी कई बार होता है कि जो एरर आपको पोर्टल दे रहा है वो तक हमें समझ नहीं आता कि वो एरर है क्या। उसको समझना और अपडेट करना तो बहुत दूर की बात है। विद एक्सप्रेस जीएसटी हमने कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स यूज करी हैं जिनसे कि एरर का पता चलना, उनको समझना और उनको फिक्स करना बहुत ही सिंपल हो चुका है। टू सॉल्व दिस पेन पॉइंट वी हैव डन टू थिंग्स स्पेशली। द फर्स्ट इज कि हमने एक तो मोर देन 100+ वैलिडेशंस अप्लाई करें अक्रॉस द सॉफ्टवेयर, जो कि आपके सभी पॉसिबल एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा और आपको एक रिजल्ट देगा। द सेकेंड इज कि इंपोर्ट होने के बाद हम पूरे डेटा को 4 इंपॉर्टेंट येट इजी टू अंडरस्टैंड स्टेटसेस में डिवाइड करते हैं, ताकि आपको ये पता चलता है कि ऐसा कौन सा इनवॉइस है जिसमें एरर आई थी, ताकि आपके लिए उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही आसान होता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि अनलाइक मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जहाँ की अगर आपके डेटा में कुछ एरर है तो वो आपको डेटा इंपोर्ट ही नहीं करने देते और आपको बोलते हैं कि इन एरर्स को आप पहले फिक्स करिए फिर अपने डेटा को इंपोर्ट करिए। वहीं अगर हम एक्सप्रेस जीएस की बात करें तो चाहे आप कैसा भी डेटा इंपोर्ट करें, हम सॉफ्टवेयर में आपके डेटा को इंपोर्ट कराएंगे, उसके ऊपर वैलिडेशंस अप्लाई करेंगे और आपको रिजल्टेंट बताएंगे, जिससे कि आप अपने इनवॉइसेस पे प्रॉपर एक्शन ले पाएं। सो विद दैट सेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एक्सप्रेस जीएस। उसके लिए जो है ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है फ्री ट्रायल और एक है लॉगिन। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप फ्री ट्रायल ऑप्ट करें और इसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। वो सारी डिटेल्स एंटर करें। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करें एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू साइन अप। अगर हम लॉगिन की बात करें तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट अवेलेबल है तो आप लॉगिन के ऊपर ऑप्ट करें। आज के प्रोसेस के लिए हम लॉगिन पे ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट अवेलेबल है जिसमें हम कुछ एंट्रीज करके देखेंगे। तो आपने अपनी डिटेल डाली, विच इज योर मोबाइल नंबर एंड द पासवर्ड दैट यू हैड सेट, फिर आपने लॉगिन किया। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो द स्क्रीन दैट यू लैंड ऑन टू इज द क्लाइंट मास्टर। यहाँ पे आपको वो सारी कंपनीज जो आपने अभी तक बनाई हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब आज के डेमो के लिए हम 2 यूज केसेस डिस्कस करेंगे, 2 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आप एक सीए फर्म है और आपको एक नया क्लाइंट मिला जिसकी आप R1 फाइलिंग करना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट फर्म है और आपकी एक नई ब्रांच है जो ओपन हुई है, या एक नई ब्रांच है जिसका एक अलग डिफरेंट GSTIN है, उसके लिए आपको R1 की फाइलिंग करनी है। दोनों ही सिनेरियोज में जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपको ऑप्ट करना है वो है कि आप एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ कंपनी क्लिक ऑन द प्लस आइकन और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करें अलॉन्ग विद द कैप्चा। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला और और पासवर्ड डाला और कैप्चा डाला और मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ये सेव हो गया, यहाँ पे आपको अपनी GSTIN की पूरी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड मिल जाएंगी। आपको कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है जो मैंडेटरी हो और आपको फिल करनी पड़े। सिंपल सा प्रोसेस है, 1 क्लिक प्रोसेस। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू करें और सेव के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी जो कंपनी है ये क्रिएट हो चुकी है, क्रिएट हो गई है। क्लाइंट मास्टर की स्क्रीन पे वापस आ गए और यहाँ पे अब आप अपनी जो नई क्रिएटेड कंपनी है उसके ऊपर क्लिक करके और उसके फ्लो के अंदर चले जाएं। जैसे ही आप वो कंपनी एंटर करते हैं वैसे ही हम आपको GSTIN इनसाइट्स दिखाते हैं। यहाँ पे आपको अपने GSTIN की क्यूरेटेड समरी मिलती है जो कि आपको बहुत ही आसानी से ये बताती है कि आपके GSTIN में क्या डिटेल अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास 8 स्लाइड्स हैं जो कि हर स्लाइड अपने आप को एक यूनिक डेटा देती है। तो अगर हम पहली स्लाइड की बात करें तो वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती है आपकी कंपनी के अलॉन्ग विद द टर्नओवर एंड कोर नेचर ऑफ द बिजनेस। जो दूसरी स्लाइड है वो आपको ऑथराइज सिग्नेटरी और बाकी सारी डिटेल्स बताती है अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो थर्ड स्क्रीन है वो आपको ये बताती है कि आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो नेक्स्ट स्क्रीन है, फोर्थ स्क्रीन, वो आपको आपका फाइलिंग स्टेटस बताती है क्वार्टरली, मंथली और एनुअल रिटर्न्स का। जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर का एज ऑन टुडे बैलेंस बताती है। उसके बाद जो स्क्रीन है वो आपको उस पैन से, जो आपकी GSTIN का पैन है,
उससे एसोसिएटेड जितने भी GSTINs है वो बताएगी। द नेक्स्ट स्क्रीन, द सेकंड लास्ट स्क्रीन विल टेल यू अबाउट द ऑथेंटिकेशन कि आपका आधार और eKYC हो चुका है। और जो लास्ट स्लाइड है वो आपको ये बताएगी कि आप कौन से HSNs हैं जिनके साथ डीलिंग करते हैं। अब जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देख ली है तो हमारे पास नीचे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब जैसे ही आपने अपनी कंपनी बनाई तो सबसे पहली चीज क्या होती है जो आप देखना चाहेंगे, इट इज कि उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी में क्या सेल्स और परचेज किस तरीके से चल रही है, कोई ऐसा अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है जो हमें देखनी चाहिए और एड्रेस करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो कंपनी है वो अपनी रिटर्न फाइलिंग सही से प्रॉपरली टाइमली नहीं कर रही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें जो नेक्स्ट स्क्रीन है विच इज डैशबोर्ड, द GSTIN डैशबोर्ड, वहां पे अवेलेबल होती है। सो अब मैं गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँ एंड देन आई विल बी एबल टू व्यू द डेटा। अब जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है विच इज द GSTIN डैशबोर्ड, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर बात भी करी, इट गिव्स यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर GSTIN डेटा financial year wise to get you a better visibility or and control of the data, and if you want to take any appropriate actions on it then you can do that, right? So यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर स्विच करना चाहें तो आप यहाँ से ऊपर से कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया हमने और यहाँ पे अब ये जो हमारे पास GSTIN डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास 7 सेक्शंस अवेलेबल हैं, ईच सेक्शन इंडिकेटिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है return summary का। It gives you a complete information of all your return statuses for that particular financial year जो आपने select किया हुआ था ऊपर। यहाँ पे हमारे पास 4 simple और easy to understand statuses हैं। सबसे पहला होता है ड्यू। ड्यू का मतलब ये है कि वो वाली रिटर्न की ड्यू डेट या वो वाले टैक्स पीरियड की ड्यू डेट अभी तक आई नहीं है और आपने उसकी फाइलिंग नहीं करी है। दूसरा स्टेटस होता है ओवरड्यू, जिसका मतलब ये होता है कि उस रिटर्न की ड्यू डेट निकल चुकी है और आपने अभी तक उसकी फाइलिंग नहीं करी है। जो थर्ड स्टेटस होता है वो होता है प्रिपेयर, वो होता है फाइल्ड, जो ये बताता है कि आपके उस टैक्स पीरियड के लिए आपने अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर ली है। और जो चौथा स्टेटस होता है वो होता है प्रिपेयर, जिसका मतलब ये होता है कि आपके टैक्स पीरियड कि आपका जो टैक्स पीरियड है वो तो स्टार्ट हो गया बट उस टैक्स पीरियड के लिए फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप डेटा जरूर एंटर कर सकते हैं बट आप फाइलिंग नहीं कर सकते उस केस में। जो यहाँ पे सेकंड सेक्शन होता है वो होता है रिकंसिलिएशन का। ये हमारे 2A रिको टूल को ओपन करने का एक नेविगेशन पॉइंट है। यहाँ पे आप चाहें तो आप एनुअल, क्वार्टरली और मंथली रिकंसिलिएशन देख सकते हैं। जो थर्ड सेक्शन होता है यहाँ पे वो होता है सेल्स वर्सेस परचेज। यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन ग्राफ्स दिख रहे हैं, वन फॉर सेल्स एंड द अदर वन फॉर परचेज, जो आपको ये बताता है कि आपके सेल्स टू परचेज में कहीं कोई बहुत ज्यादा एनोमलीज तो नहीं है। जो इसके साइड में हमें सेक्शन दिख रहा है दैट इज टैक्स, नेट टैक्स, जो हमें ये बताता है कि आपका R1 - 2A का टैक्स क्या बन रहा है, जिससे कि अगर बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस हो तो आप उसको देख के और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस ले पाए। कैश एंड क्रेडिट लेजर, जो कि हमें ये बताता है कि आपके कैश और क्रेडिट लेजर का अभी करंटली क्या बैलेंस अवेलेबल है। द सिक्स्थ सेक्शन हियर इज टैक्स लायबिलिटी एंड ITC, जो ये बताता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बाय R1 क्या थी, आपकी टैक्स लायबिलिटी बाय 3B क्या थी और R1 - 3B की प्रोबेबल लायबिलिटी आपकी क्या बन रही थी। अगर हम नीचे वाले पार्ट की बात करें तो वो ITC के बारे में बात करता है, जो ये बताता है कि आपकी ITC बाय 3B क्या थी, ITC बाय 2B क्या थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई एक्सेस ITC क्लेम कर लिया उस पर्टिकुलर महीने में। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेस क्लेम करी है। जो लास्ट सेक्शन हमारे पास है वो यहाँ पे है इम्पोर्ट बुक्स डेटा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने सेल्स और परचेज के डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम अप्रैल 21 के अंदर जाके डेटा को इम्पोर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी जेसन जनरेट करेंगे। तो मैंने जैसे अगर अप्रैल में मुझे R1 में जाना है तो उसके लिए मैं ड्यू के ऊपर क्लिक करूंगी, सो दैट इज हाउ आई वुड बी एबल टू नेविगेट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई डेटा इम्पोर्ट नहीं करा हुआ है इसलिए मुझे जो स्क्रीन है वो ब्लैंक दिख रही है। मैं इम्पोर्ट बुक्स डेटा के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का डेटा जो है वो इम्पोर्ट कर सकती हूँ सेल्स का। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया या मैंने यहाँ पे फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पॉपअप खुल गया
मैंने अपनी फाइल सेलेक्ट करी और ओपन किया और मैंने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया। तो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने डेटा को एंटर करते हैं तो हमारे सिस्टम में इस बात को समझते हुए इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का R1 डेटा टेम्पलेट इंपोर्ट भी कर सकते हैं और वो बहुत ही आसानी से हमारे सिस्टम में इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में अगर आप अपने डेटा में अगर आपके डेटा में कुछ एरर आई है इंपोर्ट कराते टाइम तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने डेटा को दोबारा इंपोर्ट करें, एरर को फिक्स करके दोबारा इंपोर्ट करें। वहीं एक्सप्रेस जीएसटी में चाहे कैसा भी डेटा हो वो इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव स्टेटस जो है उस डेटा का मिल जाएगा और आप उस पर्टिकुलर स्टेटस के ऊपर जाके उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट कराते टाइम हमने 100+ स्मार्ट वैलिडेशन लगाए हैं जो कि इंपोर्ट करने के बाद आपके डेटा में जो भी एरर्स या जो भी वार्निंग्स आ रही हैं वो आपको दिखाएंगे और अगर आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है तो वो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। अब जब आपने एक बार अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है तो जैसे ही इंपोर्ट हो गया वैसे ही जैसे हमें दिख रहा है कि जीएसटी R1 समरी जो है वो पॉपुलेट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो समरी है ये बहुत ही मीनिंगफुल क्यूरेटेड बहुत ही सोच समझ के डिजाइन करी हुई समरी है जो कि आपको हर सेक्शन का रेलेवेंट डेटा दिखा देगी इंक्लूडिंग कि क्या आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई एरर्स हैं क्या या वार्निंग्स हैं क्या, और अगर कोई एरर्स हैं तो वो आपको यहाँ से क्लिक करके आप उनके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पूरी समरी जो है ये जनरेट हो चुकी है। अब अगर आपको हर सेक्शन का सेक्शन वाइज सिर्फ ग्रैंड टोटल देखना हो तो उसके लिए यहाँ पे कोलैब सॉल्व करें और यहाँ पे आप हर सेक्शन का ग्रैंड टोटल भी देख सकते हैं। अगर आपको सभी सेक्शन का कंबाइंड ग्रैंड टोटल देखना है तो उसके लिए हमारे पास टॉप पे ऑप्शन अवेलेबल है। ये इस ग्रैंड टोटल का फायदा ये है कि आपको ये पता चल पाएगा कि क्या आपका डेटा जो इंपोर्ट हुआ है क्या उसका सही कैलकुलेशन बैठ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा इनवॉइस मिस कर दिया था या ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं बन रहा है। अब जैसे ही या तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्लिक करें या फिर उस पर्टिकुलर स्टेटस के ऊपर क्लिक करें या फिर व्यू एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करें, इन तीनों ही चीजों से आप अपने पर्टिकुलर इनर सेक्शन के ऊपर या उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जिस सेक्शन के ऊपर हम लैंड हुए वो है B2B। B2B के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमने हर सेक्शन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको अपने सारे इनवॉइसेस एक ही जगह पे स्क्रोलेबल व्यू में दिख जाएं उस पर्टिकुलर टेबल के। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इनवॉइस की डिटेल्स जो है वो कम्प्लीटली एक ही स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाते, उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और किसी अलग स्क्रीन के ऊपर वो आपको नेविगेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम एक ही स्क्रोलेबल व्यू में एक ही हॉरिजॉन्टल व्यू में आपको आपका पूरा इनवॉइस प्रोडक्ट वाइज दिखा देते हैं। अब जैसे कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि एरर्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे दो चीजें करी है। फर्स्ट इज कि हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स को 4 स्टेटसेस में डिवाइड किया है, एरर्ड, टू बी अपलोडेड, अपलोडेड और वार्निंग। एरर्ड वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा एरर आ रही है और वो पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं हो पाएंगे। टू बी अपलोडेड वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके जिनमें कोई एरर नहीं आ रही है और वो बहुत ही आसानी से पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। वार्निंग वो वाले सिनेरियोज होते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर ने आपको एक वार्निंग दी है बट वो रिकॉर्ड्स बहुत ही आसानी से पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे और पोर्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एंड देन देयर इज अपलोडेड, जो वो इनवॉइसेस होते हैं जो ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोडेड हैं। तो जैसा कि हम शुरू में एरर की बात कर रहे थे, सो यहाँ पे हमारे पास एरर इंडिकेशन के लिए रेड डॉट के साथ हम हर इनवॉइस को जिसमें एरर आई है वो हाईलाइट करते हैं। अब अगर आपके जिस भी उस एरर रिकॉर्ड में जिस भी फील्ड के ऊपर एरर आ रही है वो फील्ड रेड हाईलाइटेड होती है अलोंग विद अ रेड टेक्स्ट, और अगर आप उसके ऊपर हॉवर करेंगे तो आपको अपना जो एरर मैसेज है वो भी बहुत ही आसानी से एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मिल जाएगा ताकि आप उसे आसानी से अपडेट कर सकें। बेटर कंट्रोलिंग के लिए हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें करी हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग बीइंग कि हमने यहाँ पे हर फील्ड के ऊपर सर्चिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग लगाई है। अगर आपको कोई भी डेटा को सर्च करना हो किसी फील्ड के ऊपर तो उस कॉलम हेडिंग के ऊपर क्लिक करिए और आपका डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको फिल्टर करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आइकन अवेलेबल है।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप करके डेटा सर्च कर सकते हैं. So these are the two options. The second thing that we have done for controllability is कि हमने स्टेटस वाइज यहाँ पे फिल्टर भी दिया हुआ है. आप जिस स्टेटस के ऊपर फिल्टर लगाना चाहें उस पर्टिकुलर टेबल में वो आप लगा सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं. The third thing that we have done for controllability is कि हमने यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल्स दिए हैं जो आपके फिल्टर्ड इनवॉइसेस हैं उसके. तो अभी के केस में हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है तो हमें पूरे B2B के डेटा का ग्रैंड टोटल दिख रहा है. अब क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हमारे जो यूजर्स होते हैं वो कीबोर्ड को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर माउस, तो उसके लिए हमने यहाँ पे काफी सारे ऑपरेशन लगाए हैं. हमने यहाँ पे काफी सारी हॉटकीज लगाई हैं. The two of them being Alt plus Enter and then Shift plus Enter. Alt plus Enter आपके लिए एक नई आइटम की रो इंसर्ट कर देगा या एक नए इनवॉइस की रो इंसर्ट कर देगा, और Shift plus Enter जो है वो आपके लिए एक नए प्रोडक्ट की रो जनरेट कर देगा. So जैसे ही आप Alt plus Enter हिट करेंगे एक नई रो जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी. अब यहाँ पे आप अपना डेटा डालें. तो जैसे मैंने एक इनवॉइस नंबर डाल दिया. जो भी आपको डेट ऑप्ट करनी है या तो वो आप टाइप कर लें, आप सेलेक्ट कर लें. अगर आपको पार्टी का नाम डालना है तो वो नाम डालें. GSTIN, अगर आपको यहाँ पे मैंने एक GSTIN दिया. अब जैसे ही मैं आगे बढ़ी क्योंकि मेरे GSTIN का फॉर्मेट जो था वो गलत था तो उसने मुझे एक एरर दिखा दी. अब अगर आप इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो आपको एरर विजिबल हो जाएगी, और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब के ऊपर हिट करेंगे तो आप पीछे वाली रो के ऊपर जा सकते हैं. तो मैंने इस नंबर को यहाँ पे अपडेट कर लिया और मैं आगे बढ़ गई. जैसे ही मैं आगे बढ़ी वो एरर जो है वो हट चुका है. अब यहाँ पे आपको जो भी POS लेना हो वो POS ले लीजिए. मेरे केस में मैं राजस्थान ले लेती हूँ. यहाँ पे हमारे पास सर्चिंग चलती है बाय स्टेट कोड एज वेल एज बाय स्टेट नेम. तो आपने जो भी सर्च किया वो डेटा आपको मिल जाएगा. RCM, अगर आपको येस लेना है तो येस, नो लेना है तो नो. इनवॉइस टाइप, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, जो भी आपको रेट लेनी हो, और सेस का अमाउंट अगर आपको कुछ लेना है. जैसे ही आप एंटर या टैब हिट करेंगे आपका ये जो डेटा है ये सेव हो जाएगा. अब यहाँ पे दूसरी जो हॉटकी जिसको हमने सपोर्ट किया है वो है शिफ्ट प्लस एंटर, जो कि आपके पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर एक प्रोडक्ट की रो ऐड करेगा. तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर हिट किया क्योंकि ये वाला एक एक्टिव इनवॉइस था, यहाँ पे हमारे पास नीचे एक प्रोडक्ट की रो इंसर्ट हो गई है. तो यहाँ पे आप अपना डेटा एंटर करें और आगे बढ़ जाएं. इन एडिशन टू दैट हमारे पास यहाँ पे इजी नेविगेशन के लिए ऊपर टॉप में गो टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है. अगर आप किसी सेक्शन को स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में भी पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ही मैंने गो टू B2CS क्लिक किया तो मुझे B2CS के ऊपर ले गया, और यहाँ पे भी वही सेम हॉटकीज और डेटा एंटरिंग की एबिलिटी माउस के थ्रू अवेलेबल है. अब जैसे ही आपने अपने इनवॉइस डिटेल्स या अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, द नेक्स्ट स्टेप हियर इज कि आपको अपने डेटा की एक जेसन जनरेट करनी है. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेकंड स्टेप पे, व्हिच इज सेव डेटा ऑन पोर्टल. जैसे ही मैं यहाँ पे गई तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स आ रही हैं. सबसे पहली जो हमारी टेबल है वो है अपलोड समरी, और जो दूसरी हमारी टेबल है वो है प्रीवियस टू करंट मंथ का कंपैरिजन. जो अपलोड समरी की टेबल है वो हमें ये बताती है कि हमारे ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जो ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल हैं, और ऐसे कितने इनवॉइसेस है, ऐसा कितना डेटा है जो हम अब अपलोड करेंगे. यहाँ पे जो एरर वाला काउंट आ रहा है ये वाले इनवॉइसेस हमारी जेसन में जनरेट नहीं होंगे. जो रेडी फॉर अपलोड है वो जनरेट हो जाएंगे. दूसरी यहाँ पे चीज ये है कि ये वाला जो काउंट है ये आपके फर्स्ट स्टेप वाले जो काउंट है उससे हमेशा मैच करेगा. हमारे पास एक दूसरी टेबल भी है जो कि है करंट टू प्रीवियस मंथ का कंपैरिजन. यहाँ पे आपको अपने पिछले महीने की, पिछले टैक्स पीरियड की डिटेल्स मिलेंगी, और जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने करंट मंथ के या अपने करंट टैक्स पीरियड के डिटेल्स के साथ. इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी ऐसी कोई ट्रेंड एनोमलीज हैं या फिर अगर आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक्स या ऐसा कुछ कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएंगे. अब जैसे ही आपने अपने पूरे अपलोड समरी को और आपने अपने पूरे डेटा को रिव्यू कर लिया, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो है डाउनलोड जेसन का. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके डेटा की एक जेसन जनरेट हो जाएगी. अब इस जेसन को आपको पोर्टल पे लेके जाके अपलोड करके आप उसे फाइल कर सकते हैं.
यहाँ पे एक लास्ट फीचर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कि आपके पोर्टल पे ऐसा क्या डेटा है जो आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है या जो पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस डेटा को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास एक टैब अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है ऑल डेटा अपलोडेड ऑन पोर्टल। ये आपको ये बताता है कि आपने ऐसा कौन सा डेटा है जो ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रखा है। इसका फायदा ये होता है कि ऐसा कई बार ही होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि मैंने क्या ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और मेरे पास क्या अपनी फाइल में अवेलेबल है। तो इसको देख के आप बहुत ही आसानी से साइड बाय साइड ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपने क्या डेटा ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और क्या डेटा अपलोड नहीं कर रखा है। सो विद दैट सेड, we have completed our GSTR1 demo. Thank you everyone. We are really overwhelmed with this huge participation. Request you all to please share your feedback so that we can improve and we can do many more webinars like this. Thank you.